So what are genes? Genes are the segment of DNA that produces functional RNA. That's what we learned in the last class, isn't it? You defined it as a hereditary unit, genes as a hereditary unit, which carries information from one generation to another, transfers character from one generation to another. But the biochemical definition is this, that the genes are the segment of DNA within the chromosome. Genes are present, DNA is present within the chromosome, and genes are present within the DNA. है ना? So basically, suppose, say this is a chromosome. Okay, and this has a DNA like this. It is not as simple as I have drawn. It is highly complicated, highly supercoiled, of course. So for example, it contains, this chromosome might contain many genes, thousands of genes. Say this is a part of gene. This is a gene. This is a gene, maybe. Okay. So these are the segments of DNA. Basically, what is there? Double-stranded DNA, isn't it? And that contain the bases, A, T, G, C. DNA comprised of A, T, G, C bases, nucleotides. Okay. And they actually are called genes if that part, that particular segment, if it forms a functional RNA. Okay. If this portion, that means what? If this is a gene, it produces an RNA, it also produces an RNA. RNA is not produced from these areas. Okay. These areas do not produce RNA because they are not genes. They might be producing some RNA, which are called long non-coding RNA, responsible for some regulation, regulatory mechanism, gene regulation. For that purpose, there are certain areas in the genome which synthesize some RNA. Okay, but that is in a random basis. So genes are these areas where from you get a functional RNA. This RNA could be mRNA, could be rRNA, could be tRNA, or it could be even snRNA, okay, snORNA. There are many RNA. Many types of RNAs are there. scRNA. Okay, so whatever, all these are functional RNAs. So they have respective DNA sequence from where this particular RNA is produced via transcription. Transcription is a process by which RNA is formed from DNA. You know this or not? Translation is a process of protein synthesis. mRNA is the sequence that contains the coding sequence. Using those codes, amino acids are linked together to form the protein via translation. So translation is a process of protein synthesis. Transcription is a process of RNA synthesis from DNA. And replication is DNA to DNA or RNA to RNA. Same thing to same thing is replication, isn't it? So these specific areas called genes, they synthesize, they transcribe a RNA which will be involved in certain function. Like mRNA, what is the function of mRNA? mRNA contains the specific sequences, the information for protein synthesis, the codes which will actually bring the particular amino acid. That particular sequence is present in the mRNA. That means the same sequence is present in the DNA also, because from there only the mRNA is being synthesized. rRNA, function of rRNA. What is the function of rRNA? rRNA, ribosomal RNA. What is the function of that? No, not for ribosome synthesis. They are within the ribosome. They are the structural part of ribosome, but their function is in protein synthesis.
They are involved in protein synthesis. For example, how? Say this is 30S ribosome, suppose. There are two subunits of ribosomes, small and large subunits. In case of prokaryotes, 30S is the small subunit and 50S is the large subunit. So this 30S contains an RNA called 16S rRNA. This is a RNA. It is called 16S rRNA. Okay, and the 50S subunit, that is the large subunit, it contains two RNAs. One is, say, this one is 23S, a little larger, 23S rRNA. And there is a small one, that is 5S rRNA. Okay, दिखाई दे रहा? The function of this 16S rRNA is during transcription. It has a sequence, say यहाँ पर एक sequence है, this is a sequence that is called SD sequence. SD for Shine-Dalgarno sequence. This sequence will match with the sequence in the mRNA. It has a complementary sequence in the mRNA. During protein synthesis, what happens? So this is an mRNA. This is 5' end and this is 3' end. Okay. So ribosome will come and will bind with this mRNA first for the protein synthesis. The start codon is what? AUG. AUG is a start codon. AUG is the initiation codon for protein synthesis. Protein synthesis will start from this place. So before that, there are many AUG in the RNA. In fact, this one, maybe here also, maybe here also. So there may be internal AUGs and there will be initiator AUG. Which AUG will be considered as initiator AUG? It depends on a sequence prior to that, preceding that AUG. That sequence is the Shine-Dalgarno sequence. And that area is called promoter region. So the promoter part contains the Shine-Dalgarno sequence. इसमें भी एक Shine-Dalgarno sequence रहता है यहाँ पर, suppose. ये जो internal AUG है ना, उसके सामने नहीं रहेगा Shine-Dalgarno sequence. यानी कि वो initiation AUG नहीं है, इसका मतलब. इससे पहले भी अगर कोई AUG है यहाँ पर, if there is an AUG here, AUG, and if there is no Shine-Dalgarno sequence before that, that means that is not the initiator sequence, AUG. The identification of initiator AUG is this Shine-Dalgarno sequence. So the ribosome will come first, the 30S ribosome, 30S subunit, small subunit will come first, and it will sit here. It will bind here in the 5' end, and it will start moving this direction. Because it has a 16S rRNA like this, and that also contains the Shine-Dalgarno sequence, the complementary sequence to this sequence, it will scan, it will move in this direction. And when it will come to this area, this particular part, where the 16S Shine-Dalgarno sequence matches with the mRNA Shine-Dalgarno sequence. Are you getting it or not? जहां पर mRNA के भीतर का जो Shine-Dalgarno sequence का ये है और RRNA 16S RRNA के भीतर जो Shine-Dalgarno sequence, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. वो जहां पर आ जाएगा वो वहां रुक जाएगा, यहां आकर रुक जाएगा, यहां पर हाइब्रिडाइज कर गया दोनों. That means what is the function of 16S rRNA? The function of 16S rRNA is to recognize the Shine-Dalgarno sequence in the mRNA so that protein synthesis can be initiated, because the next AUG is the starting AUG, initiator AUG. So where to start with, this thing is defined by this 16S rRNA. Isn't it? Are you getting it or not? Similarly, 23S rRNA has some function. Actually, this 23S rRNA is an enzyme.
23S rRNA is an enzyme. You might be knowing that enzymes are proteins. Enzymes are made up of proteins, but there are some enzymes, those are made of RNA. Those are called ribozymes. Ribozymes बोलते हैं उसको. Ribo means ribonucleic acid, zymes means enzymes. So these are ribonucleic acid acting as a catalyst or an enzyme, hence they are called enzymes or ribozymes. So 23S rRNA is an enzyme. The name of the enzyme is peptidyl transferase. इसका जो enzymatic activity है वो है, उसका नाम है peptidyl transferase. ये ठीक है. इसके बारे में when we will study the protein synthesis, you will see that what is its function. अभी हम उसमें डिटेल्स में जाएंगे तो इधर वाला नहीं होगा, थोड़ा सा हिंट्स के लिए बोल. टीआरएनए का क्या काम है? ट्रांसफर आरएनए, उसका क्या काम है? What is the function of tRNA? What does it transfer? Why the name is transfer RNA? In the last class I said that it is an adapter. It is an adapter RNA. That means like the adapter you use in your electric circuit, in your switches, when that plug is not fit with the socket, you put there a kind of adapter which will connect that. The connector मोबाइल में भी यूज होता है, ये जो यूज किए हुए. When your type C is not entering into the OTG, then you use a connector, that is an adapter. Same thing happens when protein synthesis occurs. Amino acids are brought to be linked together via peptide bond. Amino acids will not hybridize with DNA or RNA, or I mean the nucleotides. mRNA comprises of nucleotides, so they will hybridize with nucleotides, not with amino acids. ठीक है. mRNA के भीतर न्यूक्लियोटाइड्स है, उसके साथ न्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइज करेगा. या आप अगर बोलो कि नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजनस बेस के साथ ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी हाइब्रिडाइज करता है. Other than that, any other molecule will not hybridize with that, isn't it? Amino acid has totally different structure, so they are not going to hybridize with the mRNA. तो यहाँ पर वही सॉकेट एंड जो प्लग है उसका वाला मैटर हो गया. सपोज अमाइनो एसिड इज ए प्लग एंड द mRNA इज द सॉकेट. ठीक है. तो दैट सॉकेट इज नॉट कंपैटिबल with that plug, with amino acid as a plug. So you need an adapter. tRNA acts as an adapter. tRNA का जो शेप होता है कुछ इस तरह का होता है. ये है 3' एंड, ये 5' एंड, ये है एंटीकोडोन, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप. दिस इज कॉल्ड एंटीकोडोन. इसको थोड़ा पतला करना होगा. एंटीकोडोन लूप. Okay, this loop is called what? This is called T-Psi-C loop. This loop is, देखो ये सब सारा चीज तुम लोग ड्रॉ करो और लिखते रहो, क्योंकि हम जब इस तरह से पढ़ाते हैं तो एक ही जगह काफी सारा चीज बोल देते हैं जो कि पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाता है. अगर उसको फॉलो करके घर में जाके अगर थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड करते रहें तो पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाता है. लगभग जब भी बात करते हैं तो होलिस्टिक अप्रोच से बात होता है. अब कहीं पर तुमको पूछेगा व्हाट इज दिस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए लेबलिंग इट्स ऑल पार्ट्स एंड फंक्शंस. तो ये जो ड्राइंग है यही कोई ड्रॉ करके इसको लेबल करके 2-4 सेंटेंस लिख दे तो उसको स्कोर अच्छा मिल जाएगा. 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिल जाएगा. लेकिन कैंडिडेट उस पर ध्यान नहीं देगा, ड्रॉ नहीं किया, हवा में बह गया, उड़ गया. तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर.
T side C loop. This is called dehydrouridine loop, DHU loop. जब भी टीआरएनए का क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, तो उसमें एक तो सवाल एज ए मतलब जो लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आर द यू कैन कॉल इट अनयूजुअल, व्हाट आर द अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट इन द टीआरएनए, फाउंड इन द टीआरएनए. टीआरएनए में कुछ अनयूजुअल बेसिस पाया जाता है, जैसे डाईहाइड्रोयूरिडीन. ये अनयूजुअल. यूरिडीन आरएनए में पाया जाता है, लेकिन डाईहाइड्रोयूरिडीन नॉर्मली नहीं पाया जाता. ये अनयूजुअल बेस है. यहाँ पर जैसे स्यूडो साई जो ड्रॉ किए हैं, दिस इज फॉर स्यूडोयूरिडीन. ये भी यूरिडीन से अलग है स्ट्रक्चर, सो इट इज अनयूजुअल बेस. सो डाईहाइड्रोयूरिडीन, स्यूडोयूरिडीन और एंटीकोडोन में कभी कभी ये आइनोसिन आई पाया जाता है, कभी कभी नहीं, अक्सर पाया जाता है आइनोसिन. सो दीज आर द अनयूजुअल बेसेस प्रेजेंट इन टीआरएनए, जो कि एमआरएनए आरआरएनए में नहीं पाए जाते. तो whenever you are asked this question, draw the structure of tRNA, you are automatically one tends to ask the name the unusual bases present in the tRNA. यही हाँ tRNA. 8+2 मार्क्स दे दिया. 8 इसको स्ट्रक्चर वगैरह का एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग फंक्शन है. जैसे दिस पर्टिकुलर हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर, ये वाला, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल लूप. ये है वेरिएबल लूप, VARIABLE, वेरिएबल लूप. लूप और आर्म ऐसे बोलते हैं. अब इसमें जो एंटीकोडोन लूप है, एंटीकोडोन लूप और आर्म, यहां पर एंटीकोडोन है, ये जो 3 ठो ऐसे ऐसे ड्रॉ किए लाइन, दिस आर एंटीकोडोन. कोडोन का उल्टा. पहले तो मालूम होना चाहिए कोडोन क्या है, फिर एंटीकोडोन का बात आएगा. तुम लोग को कोडोन के बारे में अच्छा से कॉन्सेप्ट है? कोडोन क्या है? जेनेटिक कोड. पहले वो चैप्टर पढ़ो, जेनेटिक कोड. ठीक है, जेनेटिक कोड वाला चैप्टर पहले पढ़ो, नहीं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने में डिफिकल्टी आएगा. जेनेटिक कोड में तुम्हारा जो एमआरएनए का जो काम है, बेसिकली एमआरएनए में जो यहाँ पर ड्राइंग किए थे, ये जो सब अब मिटा देते हैं कुछ कुछ. ये AUG अभी जो लिखा, जो AUG लिखा हुआ था, ये एक कोड है, जेनेटिक कोड है. AUG इनिशिएशन कोडोन बोल रहे हैं, तब से कोडोन कोडोन बोल रहे हैं ना. इनिशिएशन कोडोन का मतलब क्या? वहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है. AUG किसको कोड करता है? व्हाट इज द अमीनो एसिड AUG कोड्स फॉर? Nobody of you are answering anything, talking anything. किसको कोड करता है? What is the initiator amino acid? ये भी क्वेश्चन होता है. What is the initiator codon? What is the initiator amino acid? AUG the initiator codon. What is the amino acid it codes for? Methionine. Methionine. AUG codes for methionine. Okay? शॉर्टकट में मेट लिखा रहेगा. 3 लेटर डेजिग्नेशन मेट. सो आप पहले बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में जहां पर अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन है, वहां पर 20 अमीनो एसिड का नाम थोड़ा याद रखो. प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स जो सब है उसका नाम याद रखो. 3 लेटर डेजिग्नेशन कैसे देते हैं वो याद रखो. ठीक है, एक बार देख लो वो वाला, और फिर वापस आओ जेनेटिक कोड चैप्टर में, जहां पर जेनेटिक कोड के बारे में काफी कुछ बोला गया. कैसे पता चला AUG मेट को कोड करता है? वो हरगोविंद खुराना, उसके बाद वो नीरेनबर्ग एंड ओकोवा, ये लोग साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज मिला था इसके बेसिस पर. ओके, नीरेनबर्ग, ओकोवा एंड HG खुराना, दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस जेनेटिक कोड, क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड और डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड. बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. उससे काफी कुछ रिसर्च के बारे में, कैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रिसर्च होता है, थोड़ा थोड़ा हिंट्स मिलता है, पता चलता है, मजा भी आता है कि ओके ऐसे होता है काम. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक जो कौन कौन सा कोडोन, कौन कौन सा अमीनो एसिड को कोड करता है. आज डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी टू डू सीक्वेंसिंग.
आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो, डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हो, उसका सीक्वेंसिंग भी कर सकते हो। इसलिए आप आसानी से प्रोटीन सीक्वेंसिंग भी कर सकते हो। तो आज अभी अगर बोला जाए यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग प्रोटीन सीक्वेंसिंग, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए टू डीएनए कन्वर्ट करके सीक्वेंस कर सकते हो, सीडीएनए। तो आप बता सकते हो कि कौन कौन सा कोडोन कौन कौन सा एमिनो एसिड को कोड करता है बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। कैसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे? आप डीएनए आरएनए सिंथेसाइज भी कर सकते हो, आरएनए डीएनए व्हाटएवर, डीएनए भी सिंथेसाइज कर सकते हो, आरएनए भी सिंथेसाइज कर सकते हो केमिकली। तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। लेकिन ये घटना जो है 1960-65 उस पीरियड का है, 1960 टू 70 के भीतर का है, जब उन्होंने जेनेटिक कोड क्रैक किया था। उसका एक कहानी है। तो मोटा मोटी तुम लोग जेनेटिक कोड के बारे में ये जान को, एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है नाइट्रोजनस बेसिस, उसमें से तीन करके बेसिस एक ठो करके अमीनो एसिड को कोड करता है। अगर वो 150 बेस से बना है, दैट मीन्स इट विल कोड फॉर 50 अमीनो एसिड्स, बिकॉज ईच ऑफ द 3 बेसिस इन कॉम्बिनेशन 3-3 का कॉम्बिनेशन में एक एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। दैट मीन्स वही जो बोल रहे थे कि इफ एन ORF ओपन रीडिंग फ्रेम, जिसके बारे में लास्ट क्लास में बात हो रहा था, ORF मीन्स क्या, वही mRNA, इफ इट कंप्राइजेस ऑफ 150 और से 200 base pairs, bases not base pairs because it is single stranded, then how many amino acids, if it synthesizes protein, how many amino acids will be there in the protein? 3 से डिवाइड करो, जितना भी दिया रहेगा 3 से डिवाइड करो। अगर प्रोटीन का दिया हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। उल्टा क्वेश्चन अगर पूछा कि योर प्रोटीन कंप्राइजेस ऑफ 60 अमीनो एसिड्स, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड द एमआरएनए should be, how many nucleotides it will require to be coded? 60 into 3, 180, isn't it? Means what? Each of the 3 nucleotides are responsible for 1 amino acid. Now you need to know what is the sequence of those 3 nucleotides and what it codes for. Which amino acid are coded by that? Isn't it? That is what is genetic code is about. अब देखो AUG codes for methionine. Methionine directly AUG के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा. Methionine is an amino acid and AUG is nucleotide, nitrogenous base. Only nitrogenous base can hybridize with that. इसके अगेंस्ट में अगर हम मीथियोनिन के जगह हम अगर ये UAC लेकर आए तो वो हाइब्रिडाइज करेगा। और यही एंटीकोडोन है, यही यहां पर प्रेजेंट है। ये जो लूप है एंटीकोडोन लूप, ये आरएनए का यहां पर जो एंटीकोडोन लूप है, से यहां से शुरू करते हैं UAC, ये बीच में है, ऊपर की तरफ चला गया। एंटीकोडोन लूप के अंदर में ये वाला है, ठीक है ना, UAC सीक्वेंस है। दैट्स व्हाई इट इज हाइब्रिडाइजिंग विद AUG। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे? एंटीकोडोन। ये वाला हो गया एंटीकोडोन और ये वाला हो गया कोडोन। इसके बाद नेक्स्ट जो है सीक्वेंस, सपोज यहां पर भी ये इस तरह से लिखा हुआ है, हम एक लाइन को एक्चुअली में AUG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम में। तो नेक्स्ट कोडोन इज हियर से, वो भी 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है, ठीक है। सपोज ये UUU है, UUU है, ऐसा भी हो सकता है UUU। तो UUU कोड्स फॉर फिनाइलएलानिन, ओके, वो फिनाइलएलानिन को कोड करता है, PHE। The amino acid phenylalanine is coded by UUU। तो फिनाइलएलानिन आकर UUU के साथ बाइंड नहीं करेगा, एक tRNA होगा जो कि इसके अगेंस्ट में बाइंड करेगा, UUU के अगेंस्ट बाइंड करेगा। वो उसमें क्या एंटीकोडोन होना चाहिए? AAA, isn't it? क्योंकि हम लोग यहां पर आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए T के जगह U का बात कर रहे हैं। तुमको पता है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? ये वाला एक डिफरेंस और भी डिफरेंस है, वो डीऑक्सी और राइबोसुगर वाला। लेकिन नाइट्रोजनस बेस का क्या डिफरेंस है? 4 तो बेस में से टी के जगह पे यू पाया जाता है आरएनए में, बाकी 3 तो सेम है, ठीक ना।
तो जब हम आरएनए का बात करेंगे, जहां पर यू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग आरएनए का बात कर रहे हैं। उसी के रेस्पेक्ट में डीएनए में भी जेनेटिक कोड, मतलब आरएनए बनता कहां से? डीएनए से। तो डीएनए में भी वो सीक्वेंस रहेगा ना, उस वक्त हम एयूजी को एटीजी बोलेंगे। तुम लोग को बुक में एटीजी एयूजी दोनों ही बात कहीं कहीं लिखा हो सकता है, कहीं एटीजी लिखा रहेगा तो डीएनए के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, एयूजी लिखा हुआ है तो आरएनए के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, एक ही चीज बोल रहा है। हम डीएनए के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि आरएनए के अंदर देयर आर मेनी कोडोन्स, ट्रिपलेट बेसिस। A codon genetic code is made up of 3 bases. ये क्वेश्चन पूछता है, genetic code is triplet in nature. Give evidence to justify this statement. Genetic code is triplet in nature. इसको आप evidence देकर justify कीजिए। 3-4 क्वेश्चन जेनेटिक कोड वाला चैप्टर से पूछता है। ये वाला एक हो गया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, इसका आप प्रमाण दीजिए। पहला ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। I mean, अभी जो पैटर्न है 5, 10, उसमें से अगर दूसरा होता, अगर उसके साथ कुछ और क्वेश्चन जोड़ना चाहते हैं तो 6+4 हो सकता है 10 मार्क्स वाला में भी, ठीक है। 5 इज ए लिटिल लेस, 6 या 7 मार्क्स होने से ठीक रहेगा इसके लिए, फिर भी ठीक है। 5 इज ओके, 5 मार्क्स का रहेगा तो 5 मार्क्स जैसा लिखना होगा। ओके, क्या आंसर होगा? अभी हम जेनेटिक कोड नहीं पढ़ा रहे हैं, जेनेटिक कोड पढ़ाने से हम उधर जाते, तुम लोग को बोल रहे खुद से एक बार पढ़ने के लिए। जब जेनेटिक कोड का बारी आएगा तो पढ़ाएंगे, लेकिन जेनेटिक कोड पढ़े बिना कुछ कुछ चीज आगे बढ़ना मुश्किल है, बार बार उसका बात आएगा तो कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पाओगे, कैसे अमीनो एसिड आके फिट हो रहा। अभी तो हम जीन का डेफिनेशन में, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में लास्ट क्लास में काफी बात हो चुका था, रेकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ये सब बात हो चुका था। आई विल रिपीट दैट अ लिटिल बिट। और तुम लोग को बोलेंगे यू एंटर इनटू, अब तुम लोग बुक को फॉलो करके पढ़ना शुरू करो। वट एवर बुक यू हैव बॉट, यू स्टार्ट डूइंग दैट, कि ये वो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में कहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आरएनए है, इसमें एक के बाद एक जेनेटिक कोड ऐसे है, वेयर इट विल स्टॉप कोडोन पाया जाता है। स्टॉप कोडोन होता है ना, 6 कितना सारे कोडोन, जेनेटिक कोड कितना सारे टाइप का है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड्स आर देयर? हाउ मेनी कोडोन्स आर देयर? ट्रिपलेट जेनेटिक कोड। क्या करते हो तुम लोग? कुछ पढ़ के नहीं आए, कुछ एचएस वेचएस में नहीं पढ़ा? अजीब है। कितना? 61। नेट देख रही हो क्या? 64 टोटल होना चाहिए, उसमें से 3 स्टॉप कोडोन है, तो 61 जो अमीनो एसिड को कोड करता है। इन दैट सेंस वी कैन से 61। इसका एक मैथमेटिक्स है जो बोला पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द genetic code is triplet in nature, give evidence. So there is a mathematical evidence. There are 20 amino acids in a protein. A protein comprises of 20 amino acids. वैसे कुछ कुछ प्रोटीन में और 2 एक्स्ट्रा कभी कभी पाया जाता है, सेलेनोसिस्टीन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, उसको भी लोग गिन लेते हैं, 22 बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन, जिसको प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड्स बोलते हैं। हमारा सेल में 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है, लेकिन ऑल आर नॉट प्रोटीनेसियस। जो प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस में, वो 20 प्रकार का है, ठीक है। तो ये 20 अमीनो एसिड्स के लिए कम से कम 20 टाइप का जेनेटिक कोड होना चाहिए, है ना। तो नाइट्रोजनस बेस कितना टाइप का? 4 टाइप का है, AUGC, है ना। अभी 4 से तो 4 ही बन सकता है। अगर सिंगल अगर एक अमीनो एसिड फॉर्म करे, इफ वन बेस फॉर्म्स 1 अमीनो एसिड, A will form 1, G will form 1, C will form 1, U will form 1. Only 4 amino acid is possible. So protein synthesis is not possible by this 4 amino. You have to synthesize 20 amino acids from this sequence, from these 4
bases. So if you consider in combination of two, कि दो दो करके एक साथ अगर हम लें तो कितना होगा, कि अगर हम ए यू फिर यू जी यू ए जी सी जी ऐसे करके अगर हम करें तो क्या पॉसिबल है? तो चार्ट तो बेसिस है, तो 4 टू द पावर 2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलता है 4 टू द जितना है और कितना का कॉम्बिनेशन तुम पकड़ रहे हो, मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला है। 4 टू द पावर 2 माने 16 टाइप्स का तुम्हारा बनेगा। तुम ये चारों बेसिस को 2 2 का कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो देयर विल बी 16 कॉम्बिनेशंस, स्टिल लेस देन 20। सो 2 2 का कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकता, तो 3 3 का कॉम्बिनेशन में होगा क्या? सोच के देखो, तो 4 टू द पावर 3 यानी 64। तो मैथमेटिक्स बोल रहा है कि 64 होना ही पड़ेगा। इसी को, इस तरह का चीज को बायो मैथमेटिक्स आप अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बायो मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको भी आप बायो मैथमेटिक्स बोल सकते हो कि देयर इज मैथ्स एवरीवेयर, यू विल गेट सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहां पर मैथमेटिक्स पहले बोल रहा है कि ठीक है 64 होना पड़ेगा, और सचमुच का 64 निकला जब लोग सीक्वेंसिंग करके देखना शुरू किए, 64 टाइप्स का मिला। 64 is more than 20, very much more than 20, so what the others are doing, उतना तुमको नहीं चाहिए था। 16 में काम नहीं होगा, 64 ज्यादा हो जा रहा है। और ऐसा नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन पार्शियली तो होता नहीं है, ए के साथ कंप्लीटली टी आएगा, जी के साथ सी आएगा। ऐसा नहीं कि आधा इधर मतलब उसको आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते हो कि इतना फ्रैक्शन हाइब्रिडाइज कर गया, isn't it? नाइट्रोजनस बेस जब हाइब्रिडाइज करता है तो कंप्लीटली हाइब्रिडाइज करना पड़ता है, कि हमें जैसे कि 16 और 20 तुम डायरेक्ट 2 का कॉम्बिनेशन से 3 का कॉम्बिनेशन में चले गए। 2.2 2.3 भी तो सोच सकते थे, मैथमेटिक्स तो ऐसे ही सोच सकता है। तुम क्यों नहीं वैसा फ्रैक्शन में सोच सकते? क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन एक के बदले एक के साथ ही होता है, ठीक ना? तो मैथमेटिक्स बोला, पहला एविडेंस हम यही देंगे जब हम जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट इन नेचर डिफाइन करेंगे। वी विल टॉक अबाउट दिस मैथमेटिकल थिंग दैट permutation combination says that to synthesize 20 different amino acid, a combination of 3 bases must be there, until unless if you consider 2 bases together you get only 16 combinations, which is insufficient for the synthesis of all amino acids in a protein. एंड फिर बाद में दूसरा प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे लोगों को पता चला ओके 64 टाइप का ये 3 आर स्टॉप कोडोन्स। उसमें से एक इनिशिएटर कोडोन है AUG, बाकी जो बीच के कोडोन जिसको इंटरनल कोडोन्स बोल सकते हो, और स्टॉप कोडोन आएगा 3 ठो स्टॉप कोडोन। व्हाट आर दोस? UAA, UAG एंड UGA। Ochre, amber and apple, opal। ये 3 ठो स्टॉप कोडोन है, यानी कि इसके अगेंस्ट में कोई टीआरएनए नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस जब होगा जहां पर टीआरएनए में सपोज यहां पर आ गया UAA, your ribosome will fall here. The ribosome which is involved in protein synthesis यहां पर 30S और 50S दोनों एक साथ इंगेज था, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था। अब UAA आ गया रास्ते में। UAA के लिए कोई टीआरएनए नहीं है सेल के अंदर, यानी कोई एंटीकोडन नहीं है, सो इट विल नॉट ब्रिंग एनी अमीनो एसिड। इंस्टेड उससे बाइंड करने के लिए दूसरा चीज है रिलीज फैक्टर, RF। एक प्रोटीन है जो आके बाइंड करेगा, रिलीज फैक्टर, और प्रोटीन को वहां से जो पॉलीपेप्टाइड बना था उसको डिसअसेंबल, हाइड्रोलाइसिस, वहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप घुस जाएगा, वो निकल जाएगा, पॉलीपेप्टाइड निकल जाएगा। राइबोसोम दोनों अलग अलग हो जाएंगे 30S एंड 50S। mRNA फिर फ्री हो जाएगा, ठीक है।
ये है प्रोटीन सिंथेसाइज। तो जेनेटिक जीन जेनेटिक कोड ऐसे काम करता है, ठीक है ना। टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए अमीनो एसिड को ले आता है, उसके अंदर एंटी कोडोन है, वो कोडोन के साथ बाइंड करता है, वो एडाप्टर है। तो इसका मतलब टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड कैसे बाइंड करता है, सवाल ये है। तो यहां पर जो 3 प्राइम एंड है ना, ये वाला एंड, यहां पर एक अमीनो एसिड आकर बाइंड करता है। यहां पर इस प्रोसेस को चार्जिंग बोलते हैं। यहां पर एक अमीनो एसिड सपोज मिथियोनिन आकर यहां बाइंड किया, जो टीआरएनए मिथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका एंटीकोडोन में मिथियोनिन वाला एंटीकोडोन होगा। मिथियोनिन का कोडोन के साथ जो एंटीकोडोन बाइंड करेगा, यानी कि ये क्या है, AUAC, ये होना चाहिए उसका एंटीकोडोन में, isn't it? That tRNA is responsible for covalently linked to the methionine amino acid. ये कोवेलेंट लिंकेज है, यहां पर जो है कोवेलेंट लिंकेज है। अजी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का बात कर रहे थे, तो अब क्या है, सपोज समझाने के लिए बोल रहे हैं, राइबोसोम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये कोडोन है, 3-3 का हम ले रहे हैं। यहां पर एक लाइन का मतलब एक बेस, ये एक कोडोन हो गया, ये एक कोडोन हो गया, फिर यहां पर और एक कोडोन हो गया, फिर और एक, ऐसे करके एक के बाद एक है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये 3 एक जेनेटिक कोड है, ये 3 है। यहां पर टीआरएनए आया, सिंपल ड्राइंग के लिए ऐसे कर लिए, ये टीआरएनए। इसमें एक अमीनो एसिड है A1, 3 प्राइम एंड में बाइंड किया हुआ है। दूसरा टीआरएनए आया, यहां बाइंड किया, ये जेनेटिक उसका एंटीकोडोन है, ये वाला एंटीकोडोन है, ठीक ना। एंटीकोडोन लूप से कोडोन के साथ बाइंड किया, उसके साथ बाइंड किया हुआ है अमीनो एसिड A2। अब ये जो 50S राइबोसोम यहां बैठा हुआ है, 50S, जिसका 23S आरआरएनए, जिसको बोल रहे हैं कि इट इज एन एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, वो क्या करेगा, इस अमीनो एसिड को इस अमीनो एसिड के साथ जोड़ देगा, कोवेलेंटली बॉन्ड कर देगा उसके साथ में, ठीक है। और A1 जो है वो अब यहां से उठ के आकर के, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा देते हैं, हाँ। A1 जो है, यहां पर A2 था, A1 अब इसके ऊपर आ गया, यहां एक बॉन्ड बन गया A1, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और उसके बाद A1 आ गया। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। यही बॉन्ड तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अब क्या ये एम्प्टी हो गया, ये टीआरएनए तो एम्प्टी हो गया, ये यहां से हट जाएगा क्योंकि ये राइबोसोम है, नीचे 30S है, ये थोड़ा और एक न्यूक्लियोटाइड कोडोन आगे बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा, बढ़ना ही पड़ेगा ना उसको, तो नेक्स्ट कोडोन को सिंथेसाइज करना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। वो ट्रांसलोकेट करेगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो अब ये यहां आ गया है, अब एक नया टीआरएनए यहां आकर बैठ गया है, अब यहां पर नया टीआरएनए, सपोज यहां पर जेनेटिक, यहां पर जो कोडोन यहां पर था उस हिसाब से एक नया टीआरएनए आ गया, ठीक है, और वो A3 है, उसके साथ A3 एंजाइम है। अब ये दोनों जो अमीनो एसिड है, ये इसके ऊपर फिर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा A1, A2, A3, ऐसे हो जाएगा। फिर 3 न्यूक्लियोटाइड आगे बढ़ जाएगा राइबोसोम, फिर 4th टीआरएनए आएगा, दूसरा अमीनो एसिड लेके आएगा। रिपीट भी हो सकता है कि फिर मिथियोनिन आ गया, फिर A2 आ गया, हो सकता है रिपीट भी हो सकता है। कई बार होता है ना कि अमीनो एसिड एक के बाद एक सेम भी रह सकता है। जो भी कोडोन है उस हिसाब से टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा, वहां बैठेगा, फिर वो इधर वाला जो जितना सारा था सब उसका माथा पे चला जाएगा, जो नया वाला आया। और वो जो एम्प्टी होता जा रहा है वो एग्जिट, यहाँ पर ई साइट है, ई साइट से एग्जिट करता जा रहा है, ये निकलता जा रहा है। नया जो एरिया जो फांका है वहां पर नया अमीनो एसिड आके बाइंड कर रहा है, जैसे उसके साथ उसका जुड़ जा रहा है, राइबोसोम आगे बढ़ जा रहा है। पहले वाला जिसके ऊपर में अमीनो एसिड था, पॉलीपेप्टाइड था, वो अब एम्प्टी हो गया क्योंकि वो ट्रांसफर कर दिया उसके ऊपर, अब वो निकल जाएगा, है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक स्टॉप कोडोन नहीं आता है। स्टॉप कोडोन, अब मान लो यहाँ स्टॉप कोडोन आ गया, ये स्टॉप कोडोन है,
स्टॉप कोडन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, यहां पर आके एक प्रोटीन बैठेगा इससे जिसका नाम है आरएफ, रिलीज फैक्टर। ये क्या करेगा, अब जो यहाँ पर एक तो अमीनो एसिड का चेन है इसके ऊपर में, यहाँ है ना A3 A2 A1, सपोज 50 ऐसे 52 अमीनो एसिड जुड़ गया है, A50 A49 A48 ऐसे करके लिंक है, पॉलीपेप्टाइड बन गया, काम खत्म। अब यहां से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड और टीआरएनए से अलग हो जाएगा। समझ गए? हम पूरा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा दिए, तुम लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस चैप्टर जाके घर में पढ़ लेना चाहिए। देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस चैप्टर हम पढ़ा ही दिए, जेनेटिक कोड भी लगभग काफी कुछ बोल दिए, प्रोटीन सिंथेसिस का जो पढ़ाई दिए तो यहाँ से दिखा देते हैं। इलोंगेशन यही वाला, ये वाला है, ये सिंगल डायग्राम है जिसमें हमने सारा कुछ डाल दिया है, एक ही डायग्राम से सारा कुछ जो कि हम लोग एग्जाम हॉल में जो बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसके सुविधा के लिए। क्या होता है कि बुक में इनिशिएशन इस पेज पे है, फिर इलोंगेशन उस पेज पे है, फिर टर्मिनेशन उस पेज पे है, तीनों को ड्रॉ करो एक जगह लाओ, डिफिकल्ट हो जाता है फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हाउ डू यू ड्रॉ इन द एग्जाम हॉल, बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है कैसे ऐसे से इतना बड़ा बड़ा ऐसे करें, सो हमने इसको ऐसे करके ड्रॉ किया। ये पार्ट इनिशिएशन है, ये देखो mRNA AUG साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस दिख रहा है, ये 30S राइबोसोम आके पहले बाइंड करेगा, उसके साथ इनिशिएशन फैक्टर IF1 IF2 IF3 तीन तो इनिशिएशन फैक्टर आके बाइंड करेगा, और वो पहले AUG सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज द स्टार्ट कोडॉन। 16S rRNA का हेल्प से साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस को पहचानेगा, ओके दिस इज द साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस एंड आई एम गोइंग टू फेस the AUG. Next AUG is the initiation codon, isn't it? And then as soon as this is formed, जैसे ये फॉर्म हो जाता है, मतलब कि आपका mRNA के साथ में इनिशिएशन फैक्टर्स और 30S राइबोसोम आके बाइंड कर जाता है, और पहला वाला tRNA आके बाइंड कर जाता है, ये वाला fmet tRNA fmet इसको बोलते हैं। ये जो मिथियोनिन है ये फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन है, इसको आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ लेना कि जो शुरू इनिशिएशन मिथियोनिन होता है उसको फॉर्माइलेट करना पड़ता है इन प्रोकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स दैट इज नॉट फॉर्माइलेटेड। ओके, यूकैरियोट्स में इंटरनल मिथियोनिन एंड इनिशिएटर मिथियोनिन बोथ आर अनफॉर्माइलेटेड, whereas in prokaryotes the initiator methionine is formylated and the internal methionins are not formylated. ओके, बाद में वो फॉर्माइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। एनीवे, अब आके 50S इसके साथ जुड़ता है, और जो हम इलोंगेशन फेज बताएं कि कैसे वो आकर नेक्स्ट अमीनो एसिड आया, टीआरएनए के साथ बाइंड किया, दोनों आपस में जुड़ गया, ठीक है, ट्रांसलोकेशन हुआ, फिर थर्ड वाला ये आपस में जुड़ गया, ठीक है। ऐसे चलते चलते यहाँ पर देखो A3 A2 fmet, अब ये बहुत लंबा हो गया है, और यहाँ पर रिलीज फैक्टर आके इसको हाइड्रोलाइसिस करके रिलीज कर देगा, और ये दोनों ये सब डिसअसेंबल हो जाएंगे, मतलब कि mRNA अलग हो जाएगा, राइबोसोम्स भी अलग हो जाएंगे। ओके, एक्चुअली में कि अगर ये mRNA है तो यहाँ पर स्टॉप कोडॉन है, यहाँ अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ये प्रोटीन बन के अब रिलीज होने वाला है पीछे से, लेकिन राइबोसोम और भी है, ये ऐसे चेन जैसा फॉर्म किया रहता है। इसमें अभी छोटा है पॉलीपेप्टाइड, इसमें थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें और थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें यहाँ तक आते आते काफी बड़ा हो गया, मैंने पूरा हो गया, काम हो निकल जाएगा, ये लाइन से चलता रहता है। इसको पॉलीजोम बोलते हैं। राइबोसोम when they are sitting on the mRNA, many ribosomes together, they are called polysomes। ठीक है, लिखो पॉलीसोम वर्ड तो लिखो, एक डायग्राम तो बनाओ। ये सब जाके यहाँ पर जो भी हिंट्स वाला जो भी डायग्राम बना है, घर में जाके उसको इलाबोरेट करना है, ऐसा सोचना पड़ेगा।
ये इसको बोलते हैं पॉलीजोम, ये वाला पॉलीजोम कंडीशन है। जब राइबोसोम का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, राइबोसोम के बारे में लिख रहे हो, तो पॉलीजोम ड्रॉ करो, 30S 50S राइबोसोम ड्रॉ करो, 30S के साथ 16S आरआरएनए, 50S के साथ 23S एंड 5S आरआरएनए ड्रॉ करो, कितना सारा प्रोटीन पाया जाता है मेंशन करो, बहुत सारा काम हो गया। नाउ यू विल गेट एटलीस्ट 50-60% फ्रॉम दैट। अब डेकोरेशन कुछ बाकी है, अगर नहीं भी सकोगे तो पास करने वाला मैटर खत्म है, पास फेल से बाहर निकल आए हो। अगर क्लास को ठीक से फॉलो करो तो पास फेल से वहीं से बाहर निकल आता है आदमी, मिनिमम जितना क्लास में होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि तुम लोगों को पता चला कि टीआरएनए का फंक्शन क्या है, एमआरएनए का फंक्शन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तुम लोग आज अभी इतना देर में फेस किए हो, जिसको आंसर बना लेने से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अलग अलग जगह पे है, इस यहीं पर नहीं है। सिलेबस का कोई और पोर्शन में डेफिनेटली है जो तुम लोग का सॉल्व हुआ। लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, व्हाट आर द अनयूजुअल बेसिस ऑफ दैट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस। तो आप पहले लिखो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, एससीआरएनए, एमआईआरएनए, टीएमआरएनए। थोड़ा अब आरएनए वाला चैप्टर पढ़ लो, टाइप ऑफ आरएनए का चैप्टर पढ़ लो। अगर कोई बंदा एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए लिख के छोड़ देता है कि यही 3 टाइप का मालूम है हमको, तो हम फिर भी उसको कुछ नंबर तो देंगे। कुछ नहीं लिखा है उससे तो कुछ ज्यादा अच्छा हुआ। और एक बंदा फिर एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए और एससीआरएनए के बारे में लिखा, और एक जन टीएमआरएनए और कुछ एमआईआरएनए, एसआईआरएनए के बारे में भी लिख दिया, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के बारे में भी कुछ लिख दिया। उसको हमको ज्यादा अच्छा तो हम क्लासिफाई कर लेंगे कि किसको कितना देना है, इसको हम पास करा देते हैं और उसको 60, 70, 80 के अंदर कुछ रखते हैं, है कि नहीं। अब सबका 2-2, 4-4 लाइन लिख देना है, बस थोड़ा डायग्राम बना देना है, इतना तो इतना में काफी हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी जो हालत है उस हिसाब से बोल रहे हैं, बाजार खस्ता चल रहा है ना, तो नहीं इस जगह पे थे, तो वो भी एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जीन क्या है। तो जीन है डीएनए का वो सेगमेंट जहां से फंक्शनल आरएनए बनता है। टीआरएनए बनता है वो पोर्शन भी जीन है, आरआरएनए जहां से बनता है वो पोर्शन भी जीन है, एमआरएनए जहां से बनता है वो तो है ही है। इससे पहले लोग मानते थे कि जीन वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जहां से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो इसमें सिर्फ एमआरएनए का बात आ रहा था, क्योंकि सिर्फ एमआरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। मतलब उसका जो सीक्वेंस है कोडोन, वो एमिनो एसिड के सीक्वेंस में कन्वर्ट होता है। बाकी टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनओआरएनए ये सब तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उससे रेस्पेक्टिव, उसके रेस्पेक्ट में जो जीन है, डीएनए है, that was not considered as gene in this definition. When you are saying that genes are the segment of DNA synthesizing a functional protein, you are omitting the segments responsible for tRNA synthesis, rRNA synthesis. So that was not all inclusive definition. This is all inclusive definition जहां से फंक्शनल आरएनए बनता है। ये डिस्कशन इतना लंबा इसलिए हो गया क्योंकि ये है ही मैटर। सुनने में तो एक लाइन है, लेकिन इसको समझने के लिए तो जाना पड़ेगा डीप में, ठीक कि नहीं। अब बात करते हैं कि ठीक है, सिलेबस में बोला है, या पहले के जो साइंटिस्ट थे 1950s के दौरान, उन्होंने जीन को सिस्ट्रोन भी बोला, म्यूटोन भी बोला, रेकोन भी बोला। ऐसे किस बेसिस पर बोला? यहां पर देखो, जीन्स आर डिस्क्राइब्ड विथ 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या क्या? जीन्स डिटरमाइन ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड एक्ट एज ए फंक्शनल यूनिट। इसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। ये नाम आया था सिस ट्रांस म्यूटेशन का स्टडी करके, सिस ट्रांस म्यूटेशनल स्टडी।
that lead to the name सिस्ट्रॉन। हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्ट्रॉन्स क्या म्यूटेशन क्या है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट बोलते हैं उसको। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट स्टडी करने के दौरान सिस्ट्रॉन्स वर्ड तो आया कि सिस्ट्रॉन्स म्यूटेशन which one complements each other and which one does not complement, उसके बारे में हम समझाते थोड़ी देर में। तो उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन मीन्स एक फंक्शनल यूनिट है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए डीएनए इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन एंड दैट इज जीन। ठीक है, ये भी बात ठीक ही है। जीन्स हैव द एबिलिटी टू म्यूटेट टू एलिलिक फॉर्म्स। म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया, एलील का दूसरा एलील में बदल गया, सो बिहेव एज ए म्यूटेशनल यूनिट, तो बोल दिया म्यूटॉन। ये ऑन लगा होने का मतलब यूनिट, किसी एक यूनिट को बात कर रहा है। जिसके पीछे ऑन लगा है वो एक यूनिट, ट्रांसक्रिप्टॉन, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। रेप्लिकॉन, रेप्लिकेशन यूनिट। ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं पूछेगा तुम लोग को, हम ऐसे बोल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पूछेगा, टिक मार्क फाक सब टाइप का क्वेश्चन। तो म्यूटॉन म्यूटेशनल यूनिट, रेकॉन रिकॉम्बिनेशनल यूनिट। म्यूटॉन कैसे होता है? म्यूटेशन कहाँ होता है? म्यूटेशन लेटर ऑन, लोगों को पहले तो जब सीक्वेंस करने का एबिलिटी नहीं था। डीएनए सीक्वेंसिंग कब डेवलप किया? 1977 में मैक्सम गिलबर्ट और दूसरी तरफ फ्रेडरिक सैंगर का ग्रुप। हम लोग जो मेथड शुरू में फॉलो करते थे फ्रेडरिक सैंगर का एंजाइमेटिक मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, सैंगर्स डैडी ऑक्सी मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है। तो जब तक डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड नहीं डेवलप किया, यू आर नॉट एबल टू नो जे कहीं पर म्यूटेशन हुआ है तो कौन सा डीएनए के सीक्वेंस में कहां पर हुआ है, क्या हुआ। कोई मैसेज आ गया क्या? तुम्हारा अटेंशन उधर चला गया क्यों? डीएनए में कहां म्यूटेशन हुआ है आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जनरल नॉलेज क्या बोल रहा है, तुम्हारा साधारण बुद्धि क्या बोल रहा है कि डीएनए एक सीक्वेंस से बना हुआ है, एक छोटा छोटा टुकड़ा से बना हुआ है एक बड़ा चीज। तो कहां पर डिफेक्ट है फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर सीक्वेंस को, हर चीज को देखना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म सबको अलग कर सके, देखने का कोई मैकेनिज्म आ जाए तो वो चीज है डीएनए सीक्वेंसिंग। हम जो सीक्वेंस वहां है ए टी जी सी सी जी सी टी ए सी जी वट एवर, उसको एक एक करके हम पढ़ पा रहे हैं। ओके ओके ओके, ये अच्छा मेरा डीएनए में था ए टी जी सी, सपोज यहां पर लिख रहे हैं ए टी जी सी सी जी टी ए जी सी, ऐसे कुछ है। इससे जो रेप्लिकेशन हुआ है उसमें तुम्हारा टी ए सी जी ए हो गया, यहाँ पर सी ए टी जी, बाकी सब तो ठीक है। अब ये जो ए हुआ ये तो नहीं होना था, क्या होना था? जी होना था वहां पर। तुम जानो तो कार साथे की हाइब्रिडाइज करे, জানো না? হাইব্রিডাইজ কথাটার মানে কি? এতক্ষণ বকবক করছি সব জিরো না হয়ে, মানে আমি জানি না তোমাদের কি স্ট্যান্ডার্ড আছে। what is the meaning of hybridization? হাইব্রিডাইজ করে এই কথাটা যে বললাম, what is the meaning of that? किसके साथ कौन हाइब्रिडाइज करता है? ए के साथ कौन हाइब्रिडाइज करता है? टी, ए टी एंड जी सी, और अपोजिट टी ए और सी जी। এটা তুমি জানো না? হ্যাঁ, এটা যদি না জানো তাহলে কি করে পড়বে, কি পড়বে? অন্তত মনে 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 সরি বলে ভাবছো কি যে আমি জানবো, নাকি বকছে বকুক আমার কিছু যায় আসে না। যাই হোক, बुद्धि उड़ाओ तुम्हें, हमारे थोड़ी वो हम बनाने का काम है, बता दें तुम जो होना है तुम्हारे साथ ही होगा, बाद में पता चल ही जाएगा।
तो जो भी हो, तो अब यहाँ पर ये जो चेंज हुआ ये कैसे पता चला? जब हम इसको सीक्वेंस किए सी टी ए जी सी, जब सीक्वेंस किए तो हमको यहाँ ए मिला, जबकि उसका जो पेरेंटल डीएनए था उसमें ये सीक्वेंस था, इसका जितना सारा पेरेंटल डीएनए उसमें वही सीक्वेंस था। तो इसका मतलब ये वाला जो नया सेल, नया ऑर्गेनिज्म बना, अगर ये बैक्टीरिया है तो सिंगल सेल यूनिसेलुलर, ओके, आसान काम। बैक्टीरिया को इसलिए हम लोग यूज करते टिपिकल, बिकॉज इजी टू स्टडी, अदरवाइज म्यूटेशन ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इन ऑल सेल्स। So this mutation could be dangerous, or it could not, it may not be any importance, it may not be of any importance. अगर ये जीन के भीतर का नहीं है तो इसका कोई उतना मैटर नहीं करता। जीन के अंदर का भी है तो कभी कभी ये साइलेंट म्यूटेशन होता है। ये कब होता है? जब आप लोग जेनेटिक कोड पढ़ोगे तो पता चलेगा। जेनेटिक कोड में पढ़ोगे तो जो 64 कोडन का बात हुआ कि 20 अमीनो एसिड्स के लिए 61 कोडन का क्या जरूरत है? 20 कोडन होने से ही तो होता। तो जो एक्स्ट्रा है वो उसको हम लोग डिजेनरेट कोडन बोलते हैं। तो अगर ये जो चेंज है ये अगर थर्ड बेस में है, तीसरा वाला बेस, पहला दोनों बेस मोर और लेस सेम रहता है। जो डिजेनरेट कोडन माने एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडन, ऐसा है। किसी किसी अमीनो एसिड के लिए 6 कोडन है, किसी किसी अमीनो एसिड के लिए 4 है, किसी के लिए 2 है, किसी के लिए 3 है, किसी के लिए 1 है। मिथियोनिन के लिए 1 कोडन है, आइसोल्यूसिन के लिए 3 कोडन्स है, तुम्हारा फिनाइलएलानिन के लिए 2 कोडन्स है, सेरिन के लिए 6 कोडन्स है, लाइसिन के लिए 6 कोडन्स है, अर्जिनिन के लिए 2 कोडन्स है, ऐसे। वेलिन के लिए 4 है, ग्लाइसिन के लिए 4 है, ओके। ट्रिप्टोफान के लिए 1 है, मिथियोनिन के लिए 1 है। These are only 2 which are 1 codon specific. तो आप लोग जेनेटिक कोड, कोडन डिक्शनरी उसको देखो ध्यान, और उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने का कोशिश करो कि किस कोडन से क्या बनता है, ओके। तब जाके अंदर घुसने में तुम लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, समझो। तो जो भी हो, तो इसको हम लोग ये इसको म्यूटोन बोलेंगे। तो ये क्या होता था 1950s में जब लोग स्टडी करते थे, ये म्यूटेशन वाला घटना तो पुराना है। ह्यूगो डेवरी पहले म्यूटेशन का ये किया था कि म्यूटेशन होता है 4 o'clock प्लांट में, ओइनोथेरा लमार्कियाना प्लांट में, है ना। तो उन्होंने बोला कि न्यू डार्विनियन प्रिंसिपल दिया था कि इवोल्यूशन इज नॉट ए स्लो प्रोसेस, इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ ए म्यूटेशन। तो पहला बार जब पता चला म्यूटेशन, ओके, म्यूटेशन बोल के एक चीज है जो कैरेक्टर में अचानक चेंज आ जाता है, तो वो किसी न किसी जीन की वजह से होता है। जब ये पता चला था जीन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, जीन टर्म तो ही नहीं था, फैक्टर टर्म था, मेंडेलियन फैक्टर, ओके। यानी मेंडेलियन फैक्टर कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, और वो कैरेक्टर क्रोमोसोम में है, इतना पता था। क्योंकि जब क्रोमोसोम में कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि X0 या XY, Y होने से मेल हो रहा है, XX होने से फीमेल हो रहा है, यानी मेलनेस एंड फीमेलनेस, ये तो एक कैरेक्टर है। तो ये Y क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, यानी कैरेक्टर क्रोमोसोम से रिलेटेड है। ये बात पता चल गया था डेफिनेटली। बाद में और ज्यादा जब 1911 में स्टार्टिव एंड मूलर इन लोगों का स्टडी शुरू हुआ ड्रोसोफिला पर, उसका पॉलिटीन क्रोमोसोम के ऊपर में, तब और पता चलने लगा जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए, दे आर लिनियरली प्रेजेंट, दे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, दे रिकॉम्बाइन एंड दे कॉज म्यूटेशन। एक्सरे दे के म्यूटेट करने का फैसिलिटी आ गया, मूलर ने डेवलप किया 1928-26 उसके आसपास में, कि एक्सरे देने से डीएनए में म्यूटेशन होता है। उससे पहले जितना म्यूटेशन स्टडी हुआ था सब नेचुरल म्यूटेंट थे, तो नेचर में पहले से ही मौजूद म्यूटेंट है ना। ड्रोसोफिला में बहुत ज्यादा है, म्यूटेंट नहीं होता तो जेनेटिक्स का स्टडी आगे नहीं बढ़ता इतना ज्यादा। तो जब एक्सरे देके म्यूटेट करने का समझ में आया, एक्सरे देने से म्यूटेट होता है, तो हमारे पास बहुत सारा म्यूटेंट स्टडी करने के लिए हमको मिल गया। म्यूटेंट स्टडी कर करके हम लोग जीन का फंक्शन जानने लगे। ओके, ये वाला जीन म्यूटेट हुआ था इसलिए ये वाला फंक्शन ऑफ हो गया, ठीक है ना, लेकिन हम सीक्वेंसिंग नहीं कर पा रहे थे। तो ये लोग पता चले जीन का फंक्शन म्यूटेशन से ऑफ होता है, यानी जीन म्यूटेशन है,
यानी म्यूटोन एक जीन है, म्यूटेशनल यूनिट एक जीन है, इतना तो कह सकते हैं। हम 1950s में हैं, टाइम मशीन में अपने आप को पीछे ले जाए, 1950-60s में है, देन we don't know how to do sequencing, we don't know much about the gene, how it is comprised of, what is the structure of the gene. अभी हाल फिलहाल 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। लोगों ने बताया कि ए के विरुद्ध टी, टी के विरुद्ध जी होता है, कोई और भी तो नहीं ना है, ए और टी और जी और सी के अलावा भी कुछ है, ठीक ठाक से पता नहीं है, डाउट है ना। 1960s में डेफिनेटली कुछ डाउट है। तो उस डाउट के भीतर हम बोल रहे हैं कि ओके, रिकॉम्बिनेशन, जीन में रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होने से भी कैरेक्टर में बदलाव आ जाता है, तो जीन रिकॉन है, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट है, रिकॉन है, ठीक ही है, ये बात भी ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को पता चला सीक्वेंसिंग का जमाने में कि म्यूटेशन एक बेस पे भी हो सकता है, एक तो बेस में म्यूटेशन हो गया तो सीक्वेंस वो जो एमाइनो एसिड कोड करेगा वो बदल जाएगा। अगर वो एमाइनो एसिड अगर एंजाइम का एक्टिव साइट है तो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा। अगर वो स्टॉप कोडन में बदल जाए, ये जो UAA क्या बताया, UAA UAG ऐसे था, तो सपोज ये UAC था, दिस इज नॉट स्टॉप कोडन, म्यूटेशन की वजह से CA में बदल गया, नाउ इट इज स्टॉप कोडन। इस टाइप को म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। पिछला दिन बात आया था नॉनसेंस का ना, इसको नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। और जो उसका मीनिंग चेंज कर देता है, जैसे कि UAC था, अगर ये बदल के U to A हो गया, AAC हो गया, तो ये कोई दूसरा अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो ये मिस सेंस मिस कर रहा है, जो उसका एक्चुअल सेंस था उससे अलग सेंस का वो अमाइनो एसिड कोड करेगा, मिस सेंस म्यूटेशंस बोलते हैं। और अगर ये थर्ड बेस में अगर म्यूटेशन हुआ है एंड इट इज नॉट इफेक्टिंग, जैसे कि हमने बोला कि U कोड्स फॉर फिनाइलएलानिन, the UUA also codes for phenylalanine. So if U gets converted into A, there will be no problem. It will still synthesize phenylalanine. This kind of mutation will be called silent mutation. So mutation chapter पढ़ो, उसमें आपको point mutation बोलते हैं इसको, जब single nucleotide mutation है point mutation. Point mutation could be silent, point mutation could be missense mutation, it could be nonsense mutation. When it is converted into stop codon, protein synthesis is going to be truncated, it is going to be stopped in the middle. That protein is going to be non-functional, okay, causing too many problem in the cell. अगर ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल है तो फंक्शन पूरा पूरी ऑफ हो जाएगा, वेरी वेरी डेंजरस फॉर ए सेल, isn't it? तो इसका मतलब म्यूटेशन एक न्यूक्लियोटाइड से तो एक जीन नहीं बनता, सिस्ट्रोन के लिए तो बड़ा सा सेगमेंट चाहिए, mRNA लंबा होता है, एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं होता, एक अमाइनो एसिड के लिए 3 तो कोडन मिनिमम चाहिए, ठीक कि नहीं? तो म्यूटेशनल यूनिट इज नॉट ए जीन एग्जैक्टली। In our current knowledge, we know that mutation is not a gene. Mutation occurs in a gene. Genes are much larger than a mutational unit. And recombination also does not occur in a single base. It requires some bases, maybe 15 nucleotides, 15 base pairs. If it is site-directed recombination, there are several types of recombination. यानी कि दो डीएनए आपस में रिकॉम्बाइन करेगा क्रॉसिंग ओवर करके, तो क्या होता है ना कि मैच, पहले तुम लोग सेल डिवीजन पढ़ो, माइटोसिस, मियोसिस में जहां पर प्रोफेज के अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 फेज है। तुम लोग को याद होगा कि साइनेप्सिस बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइनेप्सिस होता है, क्रोमोसोम आपस में एलाइन हो जाते हैं अगल बगल, होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर उसमें कायस्मा बनता है, वो कायस्मा क्या है, क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट है जहां से डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज होगा। ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, ब्रेक होता है और रीयूनाइट करता है,
इसका सेगमेंट उसके साथ, उसका सेगमेंट इसके साथ रियूनाइट करता है, ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी पढ़ो तुम लोग सब क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर इज द कॉज, रिकॉम्बिनेशन इज द इफेक्ट, बोथ आर सेम थिंग। क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस, दैट्स व्हाई रिकॉम्बिनेशन इज ऑकरिंग, द रिजल्ट इज रिकॉम्बिनेशन, द प्रोसेस इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो दो क्रोमोसोम आपस में अलाइन क्यों होता है? बिकॉज दे आर होमोलोगस। हम लोग जानते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर क्रोमोसोम का एक तो होमोलोगस काउंटर पार्ट है ना। जैसे 23 पेयर्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम्स and 2 sex chromosomes, 22 autosomes, each of these 22 autosomes they are in pairs, एक नंबर पेयर, दो नंबर पेयर, हम ऐसे कर सकते हैं। 22 तो पेयर है, एक नंबर 3 नंबर के साथ, 2 नंबर के साथ नहीं हाइब्रिडाइज करेगा, एक नंबर पेयर का एक ही उसका जोड़ा जो उसी के साथ हाइब्रिडाइज करेगा। इस पर एक एलील है, उसके ऊपर भी दूसरा एलील है। ठीक है, दोनों के ऊपर, जैसे कि हम लोग, ये एक क्रोमोसोम है, उसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, यहां पर टॉलनेस का जीन है, उसका एलील इधर में स्मॉल टी या कैपिटल टी कुछ भी है, हो सकता है। ये दोनों मिला के एक जीन है, ये एक एलील है, ये एक एलील है। ठीक है ना, ये एलील इसके ऊपर डोमिनेंट है, दोनों मिलके एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है जो है टॉलनेस। ठीक है ना, इसी तरह अलग अलग कैरेक्टर का, इसको बोलते हैं लोकस, जहां पर ये क्रोमोसोम पे है लोकस, प्लूरल होता है लोसाई। जब हम बहुत सारा लोकस का बात करें तो लोसाई, तो जीन्स आर दे आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड लोकस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अलाइन करता है इसलिए कि उसमें होमोलॉजी, होमोलॉजी मतलब क्या? सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ए के साथ टी, जी के साथ सी, ऐसा मैच करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं होमोलॉजी। सेम सेम होना पड़ेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंटरी है, उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसमें भी एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड इसके साथ सिमिलर होगा, तो ये वाला स्ट्रैंड अपोजिट स्ट्रैंड के साथ सिमिलर होगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसमें से एक स्ट्रैंड इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो हाइब्रिडाइज करेगा, है ना। अब जाके कायस्मा फॉर्मेशन होगा। तो कितना लंबा हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रेच चाहिए? हाउ मच बिग रीजन यू रिक्वायर फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू टेक प्लेस? 2 क्लास था इसलिए लंबा खींच रहे हैं। कितना बड़ा सेगमेंट में हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? मेरा पहला जो लैब में जीन नॉकआउट करने घुसे थे तो लेशमैनिया में, तो उसमें भी वही था, जीन नॉकआउट करने के लिए हमको एक तो टारगेट वेक्टर डिजाइन करना होता है जो कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करके उस जीन को नॉकआउट करेगा और मेरा वाला जीन उसमें घुस जाएगा। तो उसके लिए हमको एक सेगमेंट, जिस जीन को नॉकआउट करना है उसका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रीजन को क्लोन करना है, जिस जीन को हम वहां इम्प्लांट करना चाहते हैं उसके दोनों अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में उसी को लगा देना है ताकि सेम चीज मिले। अब इस चीज को अंदर डालना है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, उसको आउट कर देगा। तो इसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ये वाला प्रोसेस जो है, जो कि यूजुअली जो भी क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है वहां होता है। एक है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन ये कहां होता है? साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जब जैसे क्रोमोसोम के अंदर, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उसमें हम लोग जानते हैं कभी कभी बैक्टीरियोफाज अटैक करता है तो अंदर जाके वो लाइसोजेनाइज कर देता है, लाइसिस नहीं करता है, लाइसोजेनिक साइकिल में चला जाता है। यू नो दैट और नॉट? You know that or not? Lytic cycle, lysogenic cycle, you remember that or not? देखो तुम लोग ऐसा जंक्शन पे हो, अब ऑलरेडी काफी लेट हो रहा है, अब तुम लोग क्लास का उस मैंने ऑनर्स का उस जंक्शन पे हो जहां पर तुम लोग को काफी स्मार्ट होना पड़ेगा, सब्जेक्ट को समझना है। तो
ये औंधा भौंधा वाला सब्जेक्ट तो है नहीं, ये मेडिकल साइंस जैसा ही सब्जेक्ट है। सीरियस पढ़ने से किसी मायने में उससे कम नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से कम नहीं है। हमको डीप में जाना है, आगे वाला थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज सब लगेगा कि अच्छे पारछी ना ये वो का अलग अलग किस्म का दिमाग में बात आएगा, फालतू ये सब लगेगा। सब्जेक्ट ही बेकार है, लास्ट में यही बोलोगे कि भूल भाल सब्जेक्ट नहीं है, फैले छी, ऐसे बोलोगे। मैंने अपना दोस्त दूसरा ऊपर मरने का जो कहानी होता है वही। तो जीवन में फेल्यूर का यही सबसे बड़ा रीजन है, जब हम दूसरे ऊपर दोष देने लगते हैं। हम ड्राइव कर रहे हैं, अरे वो आके मार दिया, हम क्या कर रहे हैं? अरे मारा तो तुम ही को ना भाई, उसका दोष छोड़ो, अपना दोष देखो। जीवन में अपना दोष ढूंढो तो अच्छा रहेगा। फॉल्ट दूसरे का हो, फिर भी हम काहे करने का ऐसा? हम इंडिया में, उधर से आ ही सकता है, इंडिया में सब होता है, ठीक है ना। अभी राइट साइड से क्यों आया, तुम उससे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, मेरा मर्जी, हम आएंगे। उधर से गाय आ गई भट्ट से, ठीक है, इधर से साइकिल घुस गया, उधर से कुछ हुआ कुछ, तो जो हर कुछ होता है यहाँ पर, तो दोष अपने आप को ही देना पड़ेगा। तो हम इसलिए सब बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज इधर उधर का, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो टर्म्स इधर उधर जाएगा, सब्जेक्ट आपस में मिल जाएगा। ऐसे में तुमको अगर उधर बैकग्राउंड का नॉलेज अगर वीक रहे तो डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ाना। तो साइड देखो, हम लोग बात कर रहे थे लाइसोजेनी का। लाइसोजेनी में क्या होता है कि कभी कभी बैक्टीरियोफाज जो डीएनए को अंदर डाला सेल के अंदर, वो रेप्लिकेट इमीडिएटली नहीं करता। लाइसिस होने से क्या होता, वो रेप्लिकेशन शुरू करता, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को डिग्रेड कर देता, और बैक्टीरियल जो सेलुलर मशीनरी था उसको अपने लिए इस्तेमाल करता, अपना डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। बाद में उसी को ट्रांसक्रिप्शन करके, प्रोटीन सिंथेसिस करके, कैप्सिड वेप्सिड बना के, अपना डीएनए को उसके अंदर भर के सेल को लाइस करके बाहर निकल आता। लाइसिस, इसी को बोलते हैं लाइटिक। लाइसिस मतलब सेल का फट जाना, और इस साइकिल को बोलते हैं लाइटिक साइकिल, एज सिंपल एज दैट। और ये तब होता है जब फाज पॉपुलेशन इंक्रीज करना है, वो करता तब है जब बैक्टीरिया थोड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट में है, न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है, बैक्टीरिया काफी लग्जरियसली ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में फाज भी सोचेगा चलो मजा ले लेते हैं, अपना संख्या बढ़ा लेगा। लेकिन जब बैक्टीरिया थोड़ा सा स्टार्वेशन में है, उसका डिवीजन रेट कम है, बिकॉज बाहर में न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी कम है, तब वो वही फाज वो लाइसोजेनी की तरफ जाएगा। अब ये हार्डकोर यहाँ पर रेगुलेशन है, लाइसोजेनिक रेगुलेशन बोलते, जीन रेगुलेशन है। इसके बारे में तुम लोग ग्रेजुएशन में नहीं है, अभी एनईपी में ना, अभी तक तो नहीं है। एनईपी का 4 ईयर का जो यूजी कोर्स है, हमने सोच रखा है कि वो तो एमएससी के बराबर बोला जा रहा होगा, तो उसमें डालना पड़ेगा ये सब जो लाइसोजेनिक रेगुलेशन, थोड़ा और हार्डकोर रेगुलेशन जो है। ये मास्टर्स में है तुम लोग का। मेरे पास कई बार लोग समझने आते हैं मास्टर्स डिग्री में, कई बार टीचर लोग ठीक समझा नहीं पाते, कई बार बोलना ठीक नहीं है, लेकिन होता है ऐसा कि नहीं समझा पाया। तो पहले तो मेरे पास बहुत आता था, आजकल स्टूडेंट का यही ऐसा घट गया है और टेंडेंसी का अजीब सा हो गया, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, लाइसोजेनिक क्यों हो रहा है। उसका जो रेगुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो सब लोग इजीली नहीं समझ पाता। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं समझ पाएगा। और मेरे पास आता था, हम तो 2-4 बात बोले तो समझ जाता है, समझाने का तरीका अलग अलग है। किसी किसी के साथ ट्यूनिंग भी होता है। एक तो जो ग्रेजुएशन में मेरे पास पढ़ा है, वो उसको लगेगा कि यहीं जाएंगे तो हमको समझ में आएगा, ऐसा एक तो होता है, ट्यूनिंग बैठ जाता है कि हम कोई एग्जाम्पल दे दिए, वो चलो शूट कर गया उसको। एनीवे, और वहां पर काफी उसको तरह तरह से बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा, वो दिमाग को भी ब्लॉक करके रखा है, वहीं पर पूछेंगे तो समझ में आएगा, पहले से ही सोच लिया। अरे भाई आप दूसरे का भी बात सुनिए, वहां भी लर्नेड लोग हैं। एनीवे, तो ये हो गया कि हाँ, तो लाइसोजेनी जब हो रहा तो बैक्टीरिया, वो सुन रहे, क्या नाम है उसका, तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, खाली कान का इस्तेमाल कर रहे हो ना, देख भी रहे हो? मेरे सब तरफ तो नहीं देख रहे हो तुम, अपना सिर को छुपा के रखे हो इसके पीछे, सायोन के पीछे, ऐसा क्यों? समझ में आ रहा है सब्जेक्ट? हैं? इन्वॉल्व होके पढ़ो।
इन्वॉल्व होकर पढ़ो, तुमको इससे क्रेडिट मिलेगा, डेफिनेटली इट विल पे फॉर यू इन फ्यूचर। देखो ये जो ड्राइंग की है क्या था, बैक्टीरियल क्रोमोसोम सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज्ड होता है। लैम्डा फाज का बात कर रहे हैं, ये भी बोलना होगा जब हम, अगर ये रिकॉर्ड हम डालें यूट्यूब पर, तो बहुत लोग सवाल कर सकते हैं आपने ये गलत बोला, वो गलत बोला, बोल ही सकते हैं, सही है। एक लेवल के जहां पर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बच्चा लोग को बताने जाएं तो उसको इतना सारा चीज बोलेंगे, उसको तो ऐसे गोल जैसा होता है, वो होता है, वो ऐसे करके समझाना पड़ेगा। तुम लोग अभी थोड़ा सा उस और एक लेवल तक गए हैं। अब हर फाज में ये चीज लाइटिक लाइसोजेनिक, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि हर फाज ही लाइसोजेनिक करेगा ही करेगा। बहुत सारा फाज है जो लाइसोजेनाइज ही रहता है, लाइसिस करता नहीं है, लाइसिस जीन म्यूटेशन हो गया है उसका, ऐसे भी हो सकता है। लैम्डा फाज का बात कर रहे हैं हम लोग, ज्यादातर बात लैम्डा फाज से करेंगे। लैम्डा फाज मालूम है ना, बैक्टीरियोफाज लैम्डा, सुना है जरूर। लैम्डा फाज के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। उसमें ना नीचे की तरफ ये जो लैम्डा फाज में ये टेल है, ये हेड है, ये नीचे वाला प्लेट तो नहीं होता है, यहाँ पर एक तो ऐसे टेल फाइबर होता है लैम्डा फाज का। इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर में है, और ये जब सेल के अंदर घुसता है, जब सेल पर ऐसे आके बाइंड किया, सेल के अंदर घुसा और ये जो इसका अपना डीएनए डिलीवर कर दिया, इसका डीएनए सर्कुलराइज कर जाता है ऐसे करके। T4 फाज T2 फाज का डीएनए सर्कुलराइज नहीं करता, इसका डीएनए सर्कुलराइज कर जाता है। लैम्डा फाज पर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए देंगे कि इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो फाज डीएनए, फाज वेक्टर यूज होता है, वो लैम्डा फाज वेक्टर है, ठीक है। तो लैम्डा फाज के बारे में आपको लिटरेचर में ज्यादा मिलेगा, और इसके बारे में ये जो गोल बन गया, ये भी गोल हो गया, ये भी सर्कुलराइज कर गया और आके इस डीएनए के साथ घुस सकता है, अंदर चला जाएगा। यहां पर जो रिकॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज ये बहुत छोटा जगह पे होता है। इसमें फाज में एक सेगमेंट है जिसको बोलते हैं एटपी, अटैचमेंट साइट इन द फाज डीएनए। ये प्लाज्मिड में भी होता है, बहुत सारा प्लाज्मिड क्रोमोसोम के अंदर घुस जाता है, उसको एपिसोमल प्लाज्मिड बोलते हैं। तुम लोग ये सब आश्चर्यजनक चेहरा दिख रहा है हमको, जैसे नाम सुन रहे हो। एपिसोमल प्लाज्मिड नहीं सुना? लिखो एपिसोमल प्लाज्मिड, और घर में जाके एपिसोमल प्लाज्मिड क्या ढूंढो। प्लाज्मिड चैप्टर देखो, एपिसोमल प्लाज्मिड, एपिसोम्स भी बोलते हैं उसको। मेरा एक यूट्यूब लेक्चर भी है प्लाज्मिड पर, बहुत लंबा लेक्चर है, बहुत ही वो डीप में जाके है, उसको सुनो। मेरे ख्याल से उतना इंफॉर्मेशन बुक में भी बहुत कम ही मिलेगा। उसमें यूकैरियोटिक प्लाज्मिड पे भी चला गया है, हाँ, 2 माइक्रोन ईस्ट का प्लाज्मिड के बारे में भी बात है, बहुत डिटेल्स में है, बहुत ही अच्छा। वो मैंने अपना पढ़ाई खुद करने से क्या फायदा, मगर वो है डिटेल्स में इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर तो कोई सुनता नहीं है, तो व्यूज तुमको उसमें ज्यादा दिखेगा नहीं। ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, साल भर पढ़े नहीं है, 5 मिनट पढ़ के कैसे पास करें, यूट्यूब देखो, उसका व्यूज तुमको लाखों में मिलेगा। टिप्स टू क्वालिफाई एग्जाम विदाउट रीडिंग, ये तुमको बहुत लाखों में व्यूज मिलेगा, क्योंकि अधिकतर लोग वैसा है। और जिसको डीप में पढ़ना है वो तो खुद पढ़ रहा है, आपके यूट्यूब का क्या जरूरत। तो ज्यादातर मीडियोकर एंड लो जो नीचे के हैं, वो लोग यूट्यूब में इस तरह का जो नुस्खा ढूंढते रहते, कुछ शॉर्टकट मिल जाए हमको पार करा दे। हम देख रहे हैं एक बंदा रेप्लिकेशन पढ़ा रहा है, कितना गलती बोल रहा है, लेकिन उसका कितना व्यूज है। दुनिया भर का हर पॉइंट पर गलती बोल रहा है वो, मतलब ऐसे ही कहीं सीखा, कहीं से कुछ सीख सक लिया आधा अधूरा, जैसे कि हायर सेकेंडरी की बुक में। तो ठीक है, लोअर लेवल के लिए ठीक ही है, चल जाएगा, क्या बोले चल जाएगा के लिए, वही पास फेल वाला माजरा हो जाएगा। एनीवे, तो ये जो एटपी और उसी का अगेंस्ट में यहाँ पर बैक्टीरियल जीनोम में भी एक सेगमेंट रहता है, उसको बोलते हैं एटबी। एटपी वर्सेस एटबी अलाइन होना होगा, तब जाके वो अंदर घुसेगा। आप लोग ये जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे तो नहीं पढ़ा है क्या? ये एपिसोम्स, ये एपिसोम प्लाज्मिड क्रोमोसोम के अंदर घुस गया। दिस काइंड ऑफ प्लाज्मिड्स आर कॉल्ड एपिसोम्स। सारा प्लाज्मिड क्रोमोसोम के अंदर नहीं घुसता है, कुछ कुछ प्लाज्मिड वो फ्रीली भी रहता है
और क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट भी कर जाता है, उसको बोलते हैं एपिसोमल प्लाज्मिड्स। ऐसा प्लाज्मिड क्लोनिंग के लिए सूटेबल नहीं है वेक्टर के तौर पे, क्योंकि वो अंदर छुप के घुस के बैठा रहेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा किधर गया। जब हम प्लाज्मिड आइसोलेट करेंगे हमको मिलेगा नहीं। इसलिए जो होस्ट जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करता है, जो इकोलाई बैक्टीरिया, उसको रेक ए माइनस होस्ट बना दिया जाता है कि रिकॉम्बिनेशन ना हो, माने वो एपिसोमल ना हो, वो प्लाज्मिड जाके रिकॉम्बाइन ना कर जाए। ठीक है, एनीवे तो ये हुआ वो। और अगर हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, एट पी ये सब तुम लोग को पढ़ा हुआ होगा, नहीं है तो तुम लोग ऐसे देखो, पढ़ने का स्टाइल बता रहे हैं। ये दिखाने का मतलब है कि यू शुड बी नोइंग कि क्या क्या हमको पढ़ना था, क्या नहीं पढ़े, कैसे हमने शॉर्टकट मारा और 80 का स्कोर ले लिया। ठीक है, तो हम कहीं भी नेट गेट फेट ये सब क्वालिफाई करने के लायक नहीं है। उसके लिए बहुत रगड़ना बाकी रह गया, अभी तक नहीं किया तो अब करना शुरू कर दो, टाइम अभी भी है। ये वाला चैप्टर में देखो, यहाँ पर एट बी हम किस लिए इधर आए, ये दिखाने के लिए। देखो एट बी, ये वाला हाइब्रिड एट बी क्या होता है, जब वो बाहर निकलता है, इसको एक्सीजन बोलते हैं। घुस गया इसका मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा, ऐसा नहीं है। घुसने का मतलब इंटीग्रेशन और बाहर निकलना एक्सीजन। ड्यूरिंग एक्सीजन वो उधर का बैक्टीरियल पोर्शन तो ले लिया साथ में, तो हाइब्रिड अपना वाला पोर्शन का एट पी और बैक्टीरिया वाला का एट बी का कॉम्बिनेशन बन गया हाइब्रिड अटैचमेंट। एट मींस अटैचमेंट साइट। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक चीज आया था, गेटवे क्लोनिंग। मतलब हम जब कोई जीन ट्रांसफर करते किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो कहां जाके घुसेगा इसका हमको अता पता नहीं होता है। तो इस वजह से कई बार वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो ऐसा किसी जगह पे जाके लॉन्च हो गया जो कि साउथ पोल पर नहीं गया, तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो हम अगर चाहें कि यहीं पर जाए तो हम गेटवे क्लोनिंग करेंगे। पहले हम गेट क्रिएट करेंगे, अटैचमेंट साइट वहां पर हम घुसाएंगे कुछ जगह पे, जो होस्ट सेल है उसका जीनोम में, और फिर मेरा जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसमें अटैचमेंट उसका उल्टा साइट है। अब ये जाके वहीं पर घुसेगा जहां हम चाहते हैं। इसको गेटवे क्लोनिंग बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, पता नहीं कारण यह है कि वो अटैचमेंट साइट को भी राइट प्लेस पे प्लेस करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, खैर, तो हम फिर वापस चले आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ते वक्त क्या क्या चीज पढ़ा कि जीन क्या है, और जीन को हम लोग कभी कभी सिस्ट्रोन बोलते हैं, कभी कभी म्यूटोन बोलते हैं, कभी कभी रेकॉन बोलते हैं। तो रेकॉन का जो रिकॉम्बिनेशन के लिए जितना जगह चाहिए वो एक थोड़ा बड़ा जगह होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए और ज्यादा बड़ा होता है, और ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के लिए छोटा। अटैचमेंट साइट कितना बड़ा है, मिनिमम 15 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होना चाहिए। वो सिमिलैरिटी मिलेगा तब ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होगा। तो जीन इतना छोटा भी नहीं होता है। एक रिकॉम्बिनेशन यूनिट में कई सारा म्यूटेशनल यूनिट आ सकता है, और एक सिस्ट्रोन में कई सारा रिकॉम्बिनेशनल यूनिट आ सकता है। ठीक है, बाद में पता चला कि दो जीन आपस में, जीन के भीतर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। रिकॉम्बिनेशन जीन के बाहर होगा, नॉन जेनिक एरिया में। अगर एक जीन के भीतर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी वो एक जीन है ही नहीं, वो दो जीन है। समझे? तो ये एलील को डिफाइन करने का, एलील, स्यूडो एलील, मल्टीपल एलील, ये सब टर्म जो आया दिखा रहे, बता रहे, ऊपर नीचे करने के चक्कर में। हाँ, अब तुम लोग ने थोड़ा सा ये चैप्टर तो पढ़ के आना। ये तुम लोग पास कौन सा बुक है, जो भी बुक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, म्यूटोन, रेकॉन, ये सब पढ़ के आना। ठीक है ना? स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट, जीन का स्ट्रक्चर कैसे, जीन में क्या क्या पोर्शन रहता है, हम बता रहे, जल्दी कुछ बता रहे हैं ताकि तुम लोग को कवर होने में सुविधा हो। देखो, ये है
मोनोसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोटिक जीन, यह है पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोटिक जीन, और यह है यूकैरियोटिक जीन। लास्ट दिन हमने एक्सोन इंट्रॉन का बात किया था, तुम्हारा दिमाग से आउट हो गया है। तो ये होता है, इसको ये ऐसे होता है कि जीन के अंदर तुम्हारा कुछ कोडिंग रीजन है, कुछ नॉन कोडिंग रीजन है। एक चीज ऐसे पूछता था कभी, व्हाट इज HNRNA, कभी पूछा है? या व्हाट इज प्री मैच्योर mRNA? कभी पूछा है? नहीं पूछा ना, पूछा तो होगा, पता नहीं तुम लोगों को। HNRNA, इससे जब RNA बनता है ना तो इतना लंबा रहता है, सारा को लेके बनता है, ठीक है। बाद में इसका जो इंट्रोन पार्ट है उसको काट के निकाल देता है, इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। टर्म सुना है स्प्लाइसिंग? स्प्लाइसिंग टर्म नहीं सुना? स्प्लाइसिंग होके सिर्फ एक्सोन वाला पार्ट बच जाता, रह जाता है। मैच्योर आरएनए में एक्सोन वाला पार्ट सिर्फ रह जाता है, वही प्रोटीन सिंथेसिस में जाता है। इसलिए एक्सोन को कोडिंग रीजन बोलते हैं और इंट्रोन को नॉन कोडिंग रीजन बोलते हैं। Exons are coding region of a gene, introns are non-coding region of a gene, and this is present only in eukaryotes, not in prokaryotes. In prokaryotes there is no intron exon thing. Gene is continuous in prokaryote, and this is called discontinuous gene. And question अगर पूछे कि why genes are discontinuous in eukaryotes, why it is continuous in prokaryotes? Because in prokaryotes, ये prokaryote है, ये DNA है, ये प्रोटीन, ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम घूम रहा है इधर उधर इधर उधर घूम रहा है, ये तो इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा क्योंकि उसको। और यूकैरियोट में क्या है? यूकैरियोट में ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहां पर डीएनए है, यहां पर राइबोसोम है, यहां से डीएनए आरएनए बन के बाहर निकलेगा तब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा। यानी कि जब तक ट्रांसक्रिप्शन होकर बाहर नहीं निकल के आ रहा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं शुरू होगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन अभी खत्म नहीं हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर कोई न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है। राइबोसोम कैन गो एंड इजीली गेट एक्सेस टू द आरएनए एंड प्री मैच्योर आरएनए। तो इसमें अगर डिसकंटिन्यूअस पोर्शन रहेगा, स्प्लाइसिंग होने का चांस इसमें नहीं मिल रहा। इसमें स्प्लाइसिंग होने के लिए जो टाइम चाहिए या स्पेस चाहिए वो नहीं है बैक्टीरिया में, तो वहां पर एक्सोन इंट्रोन नहीं हो सकता। इंट्रोन अगर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाए तो वो नॉन कोडिंग एरिया कोड करेगा, तो प्रोटीन का सीक्वेंस गलत होगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगा। सो इवोल्यूशन डेफिनेटली उसको डिसकंटिन्यू हटा देगा, वो कॉन्टिन्यूअस जीन होगा, मतलब रेडी टू बी सिंथेसाइज्ड। तो जैसे वो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, पूरी कंप्लीट भी नहीं हुआ, जरा सा पार्ट ट्रांसक्राइब हुआ, राइबोसोम आके बाइंड कर जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन बैक्टीरिया, इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम, नॉट ओनली बैक्टीरिया, आर्किया आल्सो। सो प्रोकैरियोटिक सिस्टम लिखो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। इस सेंटेंस को एक्सपेंड करना घर में जाके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Transcription and translation are coupled process in prokaryotes. Explain this. And transcription and translation are not coupled. They are separate process, occur at separate place, separate compartment, at different time also in eukaryotes. जगह ही अलग है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा। यहीं पर पूछा जाता, यहीं पर आता है दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने का मतलब क्या है, क्यों है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? क्योंकि उसको टाइम एंड स्पेस चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्ट बना HNRNA, उससे mRNA बनने के लिए उसको एक खाली दूसरा जगह चाहिए, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, जहां पर राइबोसोम ना हो, ठीक है। सो टू occur post transcriptional modification, it requires a space and time which is provided by the nuclear membrane boundary. So transcription process in the nucleus undergoes, after that the post transcriptional occurs in the nucleus,
Ribosome is outside the nucleus. It cannot come because of the nuclear membrane. So this is this one significance of nuclear membrane. That nuclear membrane provides the time and space for post-transcriptional modification to take place.